Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in Quality Assurance class. Yes, today's topic is Quality Control Test for the Containers, Closures and Secondary Packaging Material. Yes, first we discuss about the what is the quality control. Quality control is a process through which a business seeks to ensure that product quality is maintained or improved. Yes, our product test like raw material testing, granules, compressions, coating, packaging materials की बात करें, thickness, यदि these all are the step of the testing. If we talk about in short, then quality control, what is quality control is a process by which entities review the quality of all factors involved in the product. Yes, ISO 9000 क्या कहता है? ISO 9000 define the quality control as a part of quality management focus on fulfilling the quality requirement, that is the quality control. Yes, let's start. What is the packaging material? Packaging material is two types: primary packaging material and secondary packaging material. What is the packaging? Any material that used for the packaging of product for their distributions, sale and to be packing material. Yes, primary packing material what is the comes in the direct contact, मतलब our tablet, our capsule, our syrup pack in the container. This is the directly contact to our product, like examples है bottles, wires, ampoules, tin, etc. Yes, these are the primary packaging material. These are the direct contact with our products. If we talk about the secondary packaging material, what is the secondary packaging material? Secondary packaging material used to cover the primary pack. Like these are the primary packaging materials. They are direct contact with the products. But if we cover primary packaging material with the help of the secondary packaging material, this is the carton and this is the zipper. Okay. यस, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. यस, अब वन बाय वन स्टेप को हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द ग्लास कंटेनर. फर्स्ट स्टेप. यस, व्हाट इज दिस? पाउडर ग्लास टेस्ट. सबसे पहले हम ग्लास को टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे स्टरलाइजेशंस, वी आर पैक अवर स्टरलाइज प्रोडक्ट, टैब मतलब एम्प्यूज एक्सेट्रास, वी आर पैक इन द ग्लास कंटेनर. देन so first we will check about the glass. Yes, powder glass test done by the estimate amount of the alkali released from the powder. means यही कहीं हमारा जो ग्लास को हमने क्रश किया है, उसका पाउडर बनाया है, उससे कोई एल्कली मटेरियल तो निकल नहीं रहा. तो वो चीज़ें हम टेस्ट करेंगे क्योंकि ग्लास मटेरियल के अंदर जो एम्प्यूज वायर्स हैं उनके अंदर जो अपना प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली हमारी वेन में जाता है और हमारे ब्लड में जाता है. तो सबसे पहले हम ग्लास को टेस्ट करते हैं कि वो एकदम ठीक है या नहीं है, उसके अंदर सारी जो रिक्वायरमेंट, सारे स्पेसिफिकेशन बोलता है वो फुलफिल करता है कि नहीं करता. सबसे पहले ग्लास को टेस्ट करते हैं क्योंकि इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद अवर ब्लड. yes, that's why today's very important topic is quality control. yes, अब करेंगे कैसे वो देखते हैं. सबसे पहले क्या किया, सैंपल कंटेनर को अच्छे से रेंज किया, जो हमारे एम्प्यूज वायर्स हमने अच्छे से रेंज किया, ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर से, और उसको ड्राई कर लिया. देन उस कंटेनर को हमने ग्राइंड कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर लिया विद द हेल्प ऑफ द मोटर. यस, देयर इज द डायग्राम. एंड फाइन पास थ्रू द सीव. किस सीव से हमने उसको सीव किया, पास किया 20 and 50 सीव से. उसके अंदर हमने 10 ग्राम एसीटोन डाला और ड्राई किया, उसको वॉश किया अपने सैंपल को. फिर हमने 50 ml प्यूरिफाइड वाटर को ऐड किया, ठीक है, ड्राइड सैंपल के अंदर, और ऑटोक्लेव के कितने डिग्री टेम्परेचर और कितने मिनट के लिए, 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स के लिए उसको कूल किया और डिकेंटेड किया. अब जो डिकेंटेड लिक्विड था उसको हम टाइट्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विद द मिथाइल रेड इंडिकेटर. इंडिकेटर हम कौन सा यूज़ करेंगे, मिथाइल इंडिकेटर. अब हम जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हम उसको अपने स्पेसिफिकेशन से चेक करके फाइनल कर लेंगे कि दिस ग्लास कंटेनर इज गुड और नॉट. अब हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास कंटेनर्स क्या है, ईच कंटेनर रीन एटलीस्ट 3 टाइम. हमने सबसे पहले क्या किया कि उसको
3 टाइम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलाइक रेजिस्टेंस के लिए, तो 3 टाइम हमने उसको वॉश किया CO2 फ्री वाटर से, ठीक है। अब उसको हमने उसके अंदर जितना आना चाहिए उतना इतने वॉल्यूम पर उसको फिल कर दिया। अब जो वायर्स और बॉटल्स है उनको कवर करके हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 10 मिनट के लिए ऑटोक्लेव में रख दिया, ठीक है। अब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया धीरे धीरे, 100 गया था पहले, अब 100 से 121 किया हमने, कितने 20 मिनट्स के लिए। टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा 121 से 120 और कितनी देर के लिए, 60 मिनट्स के लिए। कंटेनर को हमने अच्छे से कूल किया, लिक्विड को जो भी चेक किया और वॉल्यूम मेजर किया। देखिए पहले हमने उसमें जो फिल किया था, ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट इतनी हीटिंग पर जा रहा है, उसके बाद हमारा कोई वॉल्यूम कम तो हुआ कि नहीं हुआ। तो वो चीज़ें हम लोग कंबाइन लिक्विड से कोई उसका कॉम्बिनेशन तो नहीं बन गया, वो सब चीज़ें हमने चेक की और वॉल्यूम को मेज़र कर लिया। अब जो अपना आया उसको हम टाइट्रेशन करेंगे प्रीवियस की तरह। उसके अंदर हमने वहाँ H2SO4 लिया, यहाँ पर हमने HCl लिया और मिथाइल रेड इज द इंडिकेटर के थ्रू। यस, दिस इज द हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस ग्लास कंटेनर। यदि हम बात करते हैं आर्सेनिक टेस्ट की, क्या चीज़ है ये आर्सेनिक टेस्ट? ये ग्लास कंटेनर्स के लिए किया जाता है जो पेरेंट्रल्स होते हैं, एक्वस पेरेंट्रल्स के लिए। यस, अब इसमें करेंगे कैसे वो देखिए, जो इनर और आउटर सरफेस है कंटेनर को उसको वॉश कर देते हैं डिस्टिल वाटर से 5 मिनट तक अच्छे से। फिर वही सिमिलर स्टेप जो हमने हाइड्रोलाइटिक टेस्ट के लिए किया था, वही सिमिलर स्टेप हम इसको फर्दर फॉलो करेंगे जब तक लास्ट कब तक, एक कंबाइंड जो सॉल्यूशन मिला था उस स्टेप तक। यस, 10 ml हमने अब उसका लिया, जो हमारा सॉल्यूशन मिला 121 से 122 तक मेंटेन करके, उसके बाद जो कंबाइंड सॉल्यूशन मिला उसका 10 ml हमने लिया। उसके बाद हमने उसको पिपेट किया, उसके बाद 10 ml हमने नाइट्रिक एसिड HNO3 लिया, उसको ओवन में कितने देर तक ड्राई किया, 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यस, अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, 10 ml ऑफ हाइड्रोजन मोलिब्डेन, ठीक है, और रिफ्लेक्स किया 25 मिनट के लिए। देन उसको कूल किया और उसके एब्जॉर्बेंस चेक की, कितने पर, 840 nm नैनोमीटर पर, 840 पर हमने एब्जॉर्बेंस उसकी चेक की। ओके, एब्जॉर्बेंस होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए। हमने रिजल्ट क्या आएगा कि जो भी हमने यूज़ किया इससे एब्जॉर्बेंस इसकी इतने कम होनी चाहिए, 840 से कम होनी चाहिए। और हम इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टेन यूजिंग 0.1 ml आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या यूज़ किया हमने, आर्सेनिक, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्सेनिक टेस्ट। दिस टेस्ट इज ग्लास कंटेनर इंटेंडेड फॉर द ग्लास एक्वस पेरेंट्रल्स। अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। हमने अब ग्लास कंटेनर की बात कर ली, अब हम प्लास्टिक कंटेनर की बात करते हैं जो नॉन पेरेंट्रल्स है। ये देखिए जैसे हम आई ड्रॉप पे स्क्वीज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है, और हम प्लास्टिक जिसके अंदर हम सिरप वगैरह यूज़ करते हैं। अब हम उन सब की टेस्टिंग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे लीकेज टेस्ट। यस, 10 कंटेनर हमने ले लिया, उसको पानी से फिल किया और उसको हमने अच्छे से क्लोजर से क्लोज कर दिया, लिड, ढक्कन। दे आर केप्ट इन्वर्टेड इन रूम टेम्परेचर। अब हमने उसको कितनी देर के लिए रखा है, रूम टेम्परेचर 24 आवर्स की, 1 डे के लिए। ओके, द टेस्ट इज सेट टू बी पास, नो साइन ऑफ लीकेज। अब हमने जब देखा कि वो पास होना चाहिए, उसमें कोई भी तरह का कोई लीकेज हमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, दिस इज द लीकेज है। कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट किसके लिए, जो आई ड्रॉप्स होती हैं, नोजल ड्रॉप्स होती हैं, ईयर ड्रॉप्स होती हैं, उनकी स्क्वीजिंग चेक करना है। तो ये हम आपको इसको रीड करके दिखाते हैं। द टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर द कंटेनर विच है स्क्वीज इन ऑर्डर टू रिमूव द कंटेंट। अब हम देख रहे हैं उसमें ना हार्ड प्रेशर भी नहीं लगना चाहिए, एक साथ ज़्यादा भी नहीं आ जानी चाहिए, 1 by 1 ड्रॉप जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही स्क्वीज़ होना चाहिए। हम इसको हम चेक करते हैं रिमूव ऑफ द कंटेंट के थ्रू। ए कंटेनर बाय कोलैप्सिंग इनवर्ड ड्यूरिंग यूज, जैसे हमने यूज़ किया उसके बाद वापस अपने उसी कंडीशन में आ जाए। गिल्ड at least 90% normal contents at the required state of the flow at the ambient temperature, रेजिस्टेंट रहना चाहिए टेम्परेचर पर। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड टेस्ट की। पहली हमने टेस्ट की लीकेज, दूसरी हमने कोलैप्सिबिलिटी, थर्ड हमारी बात है क्लैरिटी ऑफ द एक्वस एक्सट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं एक्वस एक्सट्रैक्ट से क्या क्लैरिटी, कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है, फ्री फ्रॉम द ऑल कंटामिनेंट्स तो है, वो हम लोग अब चेक कर लेते हैं। सुटेबल को हमने ऐसे रैंडमली लिया, अनलेबल लिया, अनमार्क लिया, लेमिनेटेड पोर्शन को हटा दिया, ठीक है। हमने क्या क्या किया, जो भी कंटेनर उसको हमने रैंडमली यूज़ किया, उसको लेबल अच्छे से हटा दिया, उसका कोई लेमिनेशन पोर्शन है तो क्योंकि उसका पार्ट भी आ जाएगा, तो पहले हमने अपने कंटेनर को पूरा फ्री फ्रॉम द अदर पार्टिकल कर लिया।
दिस पोर्शन कट इनटू द स्ट्रिप। देखिए जो ये पोर्शन हमने लिया उसको स्ट्रिप्स में हमने कट कर लिया, ठीक है। अब ये टोटल सरफेस एरिया देख रहा है कि नन ऑफ है विच हैज़, जब हमने उसको छोटे छोटे पीस में किया तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रिप को अच्छे से वॉश कर लिया, अच्छे से शेक कर लिया, दो अलग अलग सेपरेट पोर्शंस के अंदर, ठीक है, डिस्टिल वाटर में अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए, ओके। अब जो अपना सैंपल आया, ठीक है, फ्लास्क में, उसको हमने क्लीन किया किससे, क्रोमिक एसिड से, और अच्छे से उसको डिस्टिल वाटर से उसको वॉश कर लिया। अब 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज एडेड टू द फ्लास्क और कवर किया और ऑटोक्लेव किया कितने डिग्री के लिए, 121 के लिए और 30 मिनट्स के लिए। अब हमारा जो भी डिस्टिल्ड वाटर आया उसको हमने फ्लास्क में ऐड किया, कवर कर दिया, ऑटोक्लेव कर लिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड के 30 मिनट्स के लिए। अब एक्सट्रैक्ट इज कूल, पहले हमने एक्सट्रैक्ट जो हमारा आया उसको कूल कर लिया और उसको हमने अब चेक किया। ये क्या बोल रहा है कि कैसा होना चाहिए, शुड बी कलरलेस। आप कैसा भी कलर का यूज़ कर रहे हैं आपका कंटेनर को, वो शुड बी कलरलेस होना चाहिए, उसके साथ कोई कलर नहीं निकलना चाहिए, और फ्री फ्रॉम द टर्बिडिटी, और गाढ़ा टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, जैसा है वैसा ही सॉल्यूशन का, पानी का जो भी हमने वाटर किया है किसके साथ, जिसके हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके साथ वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, कोई कलर निकलना चाहिए, फ्री फ्रॉम द टर्बिडिटी होना चाहिए। ये होता है क्लैरिटी ऑफ द एक्वस टेस्ट। अपने हमने बात की ग्लास कंटेनर के प्लास्टिक, अब हम बात करते हैं क्लोजर्स की। क्लोजर्स क्या है, लिड, जो ऊपर ढक्कन लगते हैं अपनी बॉटल्स में हुए किसी में भी लगे, तो वो हमने क्लोजर्स की बात करते हैं। अब उनकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमें एक सैंपल को प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल, हाउ, क्लोजर्स को हमने अच्छे से, इन जो क्लोजर्स हैं उनको अच्छे से वॉश किया 0.2% किसके साथ, एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स के साथ, कितने मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब उसको हमने अच्छे से 5 टाइम को रिंज किया, वॉश किया डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है। अब उसके अंदर हमने 200 ml वाटर को ऐड कर दिया। हमने सबसे पहले क्या किया, क्लोजर्स को अच्छे से वॉश किया, किससे किया, 0.2% वेट बाय वॉल्यूम एनायनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स के साथ 5 मिनट के लिए। अब उसके बाद हमने 5 टाइम डिस्टिल वाटर के साथ उसको क्लीन कर लिया और उसके अंदर 200 ml वाटर ऐड कर दिया। वाटर के अंदर अपने लिड जो है, अपने जो क्लोजेस है उनको हमने रख दिया। अब उसको ऑटोक्लेव किया, कितने टेम्परेचर पर, 190 डिग्री सेंटीग्रेड और 123 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी देर के लिए, 20 to 30 मिनट्स के लिए। कवर किया उसको किसके साथ, एल्युमिनियम फॉयल के साथ, ओके। अब हमने इसको कूल किया, सॉल्यूशन को सेपरेट कर लिया, दिस इज द सॉल्यूशन ए। अब अपना सैंपल प्रिपेयर है, हम उस सैंपल को बोले सॉल्यूशन ए। रेसिड्यू ऑन इवेपोरेशन, 50 ml ऑफ सॉल्यूशन ए इवेपोरेट टू ड्राइनेस ऑन ए वाटर बाथ, ठीक है। जो हमारा सॉल्यूशन ए आया है कितना है, वो अपना 200 ml है। अब उसको हमने उसमें से 50 ml हमने ले लिया, ओके। 50 ml लिया, उसको इवेपोरेट किया, ड्राइनेस किया वाटर बाथ के अंदर, और 105 डिग्री के लिए ड्राई किया। द रेसिड्यू वेट इज़ नॉट मोर देन 4 में, जो हमें वेट मिलेगा रेसिड्यू का, इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि नॉट मोर देन 4 मिलीग्राम होना चाहिए, ओके। अब स्टरलाइजेशन टेस्ट की बात करें, क्या चीज़ है, क्लोजर जो भी यूज़ करेंगे उसके लिए जो सैंपल हमने प्रिपेयर किया उसको हम देखेंगे उसके अंदर कि वो कोई सॉफ्ट तो नहीं हो गया, टैकी टाइट और गंदा तो नहीं हो गया, टैकी अब कहते हैं ना टैकी गंदा, कोई विजुअल चेंजेस तो नहीं आ गया क्लोजर्स में, वो कहीं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर ले, दिस इज द स्टरलाइजेशन टेस्ट, नो विजुअल चेंज इन द क्लोजर। पीएच क्या बोलता है, पीएच हम कैसे चेक करेंगे, 4 टेस्ट, हमने जो अभी सैंपल ए बनाया था उसका हमने 20 ml ले लिए सॉल्यूशन ए का, उसके अंदर हमने 0.1 ml ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर यूज़ किया, उसको ऐड किया, ठीक है। उसको नॉट मोर देन 0.3 ml ऑफ कितना, 0.0 m NaOH, और या तो हमारे पास NaOH अवेलेबल तो ओके, नहीं तो हम HCl यूज़ करेंगे कितना, 0.8 ml। इज रिक्वायर्ड टू चेंज द कलर सॉल्यूशन ब्लू टू और येलो रेस्पेक्टिवली। देखिए यदि हम NaOH यूज़ करते हैं तो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और यदि हम HCl यूज़ करते हैं तो इट इज़ अ येलो कलर, इसलिए बोला गया है कि रिक्वायर्ड टू चेंज द कलर ऑफ द येलोस ब्लू टू येलो रेस्पेक्टिव, क्योंकि हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए कलर तो चेंज, हम इजीली हम उसका पीएच चेक कर लेंगे, ओके। अब अपन बात करते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी टेस्ट। सेल्फ स्टेबिलिटी देखते हैं, नॉर्मली जब हम जैसे इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे उसकी नीडल्स को पियर्स करके देखेंगे कहीं वो खुद तो स्टेबल है या नहीं है, तो सेल्फ स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। पियर्स 10 टाइम विद द हाइपोडर्मिक, हम जो ये नीडल्स यूज़ कर रहे हैं उसको 10 टाइम तक पियर्स करेंगे किसी भी
पियर्स करके देखेंगे। अब हमने क्या किया, इमर्स 0.1 है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन और सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ऑफ, क्या किया 0.1 है मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन यूज़ किया और उसको एक प्रेशर कितना 20 किलो पास्कल का उस पर प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, अब हम उसको एक जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको रिस्टोर कर लिया और उसको 30 मिनट्स के लिए स्टैंड कर दिया। अब देखेंगे हम ट्रेसेस ऑफ कलर सॉल्यूशन शुड बोर्ड में हमने उसको कितनी देर तक पियर्स किया, हमने इंडिकेटर। अब अपन को क्या चेक करना है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि ट्रेसेस ऑफ कलर शुड नॉट बी फाउंड, किसी भी तरह का कोई कलर सॉल्यूशन हमें फाउंड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कार्टन्स की। देखो दो चीज़ें होती है, कार्टन और एक शिपर। ब्राउन कलर की होती है, इसको हम कार्टन बोलते हैं, और जिस तरीके की जो होते हैं अपने जो प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग है इसको बोलते हैं शिपर, कार्टन। और ये इसको कार्टन बोला अपनी लैंग्वेज में, फार्मेसी लैंग्वेज, और दिस इज़ द शिपर। ओके, शिपर। अब देखते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग। हमने किया कंटेनर की, क्लोजर की। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल, जिसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं कार्टन्स। सबसे पहले कंप्रेशन चेक करते हैं, यूज टू एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ इरेक्टेड पैकेज देयर बाय द एस्टिमेटिंग द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इट कन्फर्म ऑन द कंटेंट। अब देखो इसमें क्या देखते हैं, हम वापस बंद करते हैं, वापस क्लोज करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ द इरेक्टेड पैकेज की चेक करते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि कितना डिग्री ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइड। यदि हम लोग जब हमारा प्रोडक्ट मार्केटिंग में जाता है, बड़े बड़ी जगह से वहाँ से ट्रांसफ़र होता रहता है, तब हम उसको स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कि कहीं रैप्चर तो नहीं हो जाता थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ में। तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ है। कंप्रेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अ यूजफुल प्रोडक्ट, नो इनहेरेंट स्ट्रेंथ वन प्लान और अनदर। अब क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट्स है वो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, जैसे सेम कंडीशन उसी में रहना चाहिए। दिस इज़ द कंप्रेशन टेस्ट। अब हमारा सेकंड बात करते हैं, फर्स्ट की हमने बात की, सेकंड है कार्टन ओपनिंग फोर्स। जब भी हम उसको ओपन कर रहे हैं तो एक इजीली एक नॉर्मल स्ट्रेंथ पे ओपन हो जाना चाहिए। कहीं उसको अब जब ओपन किए तो कहीं वो रैप्चर तो नहीं हो गया, वियर एंड टीयर तो नहीं हो गया, कहीं वो ओपन नहीं हो रहा, ओपन हो रहा तो वापस क्लोज होने की सेम कंडीशन में नहीं आ रहा। ऐसे कार्टन की ओपनिंग फोर्स को चेक करते हैं। द कार्टन शुड स्प्रिंग ओपन, देखो जैसे खोले स्प्रिंग हो गया, ओरिजिनल स्टेप विदाउट नीड ऑफ अनरीजनेबल फोर्स। उसको अलग से कोई फोर्स की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कार्टन फोर्स हम लोग सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल को खोल रहे हैं, तो उस पर कोई अलग से कोई अनरीजनेबल फोर्स ना हो। इफ़ द कार्टन डज नॉट स्प्रिंग ओपन, यदि कार्टन अच्छे से नहीं खुल रहा है, उसकी बकल्स हैं जो ऊपर हमने पैक किए हैं, दीज आर द, तो वो कहीं अच्छे से ओपन नहीं हो रहे हैं क्या, अपने आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्या यदि कार्टनिंग मशीन में। क्योंकि हम देखेंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपने आप अपना कोई भी कंटेनर आता है, अपना सिरप फिल हुआ, उसके बाद अपने आप लिड लगा, लेबल लगा, वापस कार्टन जो ये पहला सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल का अपने आप इस कार्टन में पैक हो गया। अब वो मशीन कर रही है सारा फुल्ली ऑटोमेटिक, तो मशीन्स अपने आप इसको ओपन करें, इसके अंदर अपना प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल गया, उसके बाद ये आराम से अपने आप ही पैक हो जाए, उसके लिए मशीन को अलग से कोई फोर्स लगाना ना पड़े। तो दिस इज़ द गुड टेस्ट। ओके, इसलिए हम बोल रहे हैं कार्टन ओपनिंग फोर्स। तो मशीन पर कोई अलग से फोर्स तो नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही मशीन में, क्योंकि मशीन इज़ द टू मच कॉस्टली एंड पूरे दिन में कम से कम लाख करोड़ जिनके बड़े बड़े बैचेस चलते हैं, तो वहाँ पे मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, इसलिए हम इसका कार्टन ओपनिंग फोर्स चेक करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल फॉर द पेपर और बोर्ड। पेपर और बोर्ड की बात करें, पेपर, अब पेपर हम जो यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड जो यूज़ कर रहे हैं हमारी पैकेजिंग के लिए, सेकेंडरी के लिए, कहीं आप उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। यस, एक तो टेम्परेचर ध्यान रखना है, देखिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, कितना 23 +-1, मतलब 22 भी हो सकता है, 24 भी। ह्यूमिडिटी क्या बोलती है कि 50 +-2 होना चाहिए, मतलब 52 भी होना चाहिए, 48 भी हो सकता है। अब हम क्या क्या चेक करेंगे, देखिए पेपर और बोर्ड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि यदि मॉइस्चर आ गया तो ये टेस्ट को भी फेल कर सकता है। तो मॉइस्चर कंटेंट में क्या, ऑल सब्सटेंस विल बी मेजर एट द टेम्परेचर स्पेसिफाइड फॉर द टेस्ट। सभी जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसको मेजर करते हैं टेम्परेचर को स्पेसिफाई करते हैं टेस्ट पर। फोल्डिंग एंड्रेंस, देखो फोल्ड जो हम कर रहे हैं, देखिए फोल्ड द टेस्ट पीस बैक एंड फोर्थ अंटिल द रैप्चर अकर। हम आराम से वो जो टेस्ट है क्या कहता है कि वो अपने आप बैक पोजीशन में आ जाए, कहीं हम उसको वापस उसको खोलते हैं कहीं वो रैप्चर तो नहीं हो जाता, तो फोल्डिंग एंट्रेंस बोलते हैं। एयर परमिएबिलिटी क्या चीज़ होती है कि हम इसके अंदर एयर पर लाइट वेट का देते हैं। इम्पोर्टेंस फॉर यूजिंग द लाइट वेट
कोटेड पेपर और मशीन हैविंग द वैक्यूम पिकअप। एयर में क्या वैक्यूम के अंदर एयर यूज आ रहा है, तो वैक्यूम पिकअप सिस्टम देखते हैं। इसके अंदर हम लोग एयर परमिएबिलिटी चेक करें, ठीक है, कैसे उसको उसको हम कवर करते हैं, जो सब चीज़ें हम लोग आराम से चेक करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स पर यूनिट विथ पेपर और बोर्ड विल विदस्टैंड द बिफोर ब्रेकिंग। टूटने से पहले डियर स्टूडेंट्स, टूटने से पहले पेपर और बोर्ड है वो सही रहना चाहिए, चाहे उस पर कितना ही टेंसाइल फोर्स लगा दे, हम उसको खुद से फाड़े उसको ब्रेक करें वो बात अलग है, पर जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन जा रहे हैं, जब भी हम पैकिंग कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। टीयर मतलब फटना, टूटना, कटना। तो मीन फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू टीयरिंग एंड इनिशियल कट टू सिंगल शीट ऑफ द पेपर। हम उसका क्या करते हैं, फोर्स चेक करते हैं कि कितने कंडीशन पर वो टीयर हो जाएगा, इनिशियल कट कब लगेगा उस पेपर पे, वो सब चीज़ें हम चेक करें। स्टीफिनेस क्या है, स्टीफिनेस है रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं कि जब भी हम वो बेंट घूम गया, यदि वो हमने उसको बेंट कर दिया, मोड़ दिया, तब उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे पेपर और बोर्ड का कि कितना है। बस्ट रेजिस्टेंस मतलब टूटना, फटना, प्रेशर्स अप्लाइड कर रहे हैं अलग अलग एंगल से अपने पेपर और बोर्ड पे, हर कंडीशन में उसका चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ तक रोक पाता है। दिस इज द बस्ट रेजिस्टेंस। द मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूटर प्रेशर अप्लाइड द राइट एंगल ऑफ द सरफेस ऑन द टेस्ट ऑफ द पीस एंड द बोर्ड विल स्टैंड अंडर द कंडीशन ऑफ। कितनी ही उसको अपन प्रोवाइड करें, कैसी कैसी कंडीशन, पर वो रहना चाहिए सेम कर। हाइड्रोलिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द डायफ्राम बल्जिंग अंटिल द टेस्ट में, बस हम उसको एक अलग अलग अप्लाई, हाइड्रोलिक प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं जिससे वो पेपर जब तक वो फटे ना, तो हम उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। बस्ट रेजिस्टेंस, यस। आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ if you like, share with your friends and comment and subscribe for my new video. Thank you.